ایسی محفلیں پہلے قبول ہوتی ہیں اور پھر ہوتی ہیں، اور جب تک انسان ایسی محفلوں میں رہتا ہے، حالت عبادت میں رہتا ہے، فرشتوں کے جرمٹ میں رہتا ہے، مصطفیٰ کی نگاہ میں رہتا ہے اور رب کی پناہ میں رہتا ہے. کیونکہ قیامت کے دن کئی لوگ نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، پھر بھی رب کے قریب ہوں گے. لوگ پوچھیں گے یا رب العالمین یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں میرے اور میرے محبوب کے ذکر کی محفلوں کا اور اس پر اپنا مال و زر خرچ کرتے تھے، اور جب بھی ایک دوسرے سے ملتے میرا اور میرے محبوب کا ذکر کرتے تھے. ان کے ہر عمل میں میرا اور میرے محبوب کا عشق اور محبت بسا ہوا تھا. دوستان محترم، مائی رابعہ بصری سے کوئی بھی آدمی دنیا کی بات کرتا نا، دنیا کا سوال کرتا، تو مائی رابعہ بصری قرآن اور حدیث سے اس کو جواب دیتی. قرآن اور حدیث سے جواب دیتی. تو کسی نے پوچھا مائی رابعہ بصری سے کہ آپ سے کوئی دنیا کا سوال کرتا ہے تو جواب آپ قرآن اور حدیث سے دیتی ہیں. تو مائی رابعہ بصری نے کیا کہا کہ میرے کاندھوں پہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بٹھائے ہیں جو میرا نامہ اعمال میری کتاب لکھ رہے ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں جب میرا نامہ اعمال اللہ کے سامنے محشر کے دن پیش ہو تو میں اللہ تعالیٰ کو یہی کہوں کہ ساری زندگی تیرے اور تیرے محبوب کی باتیں کرتی رہی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات. ساری زندگی تیرے اور تیرے محبوب کی باتیں، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. نہ امیراں دی گل ہے نہ غریباں دی گل ہے، مدینے نو جانا نصیباں دی گل ہے. جے مقدر وچ پھر کوئی نہیں، سفر مدینے دا ڈھیر کوئی نہیں. میں ونجا تے ونج نہیں سکدا، سونا بلاوے تے دیر کوئی نہیں. بنا پڑھے نہ درود نبی اتے کڑی زمین تے ڈلدی ہے. بنا پڑھے نہ درود نبی اتے ٹانی درخت دی چلدی ہے. بنا پڑھے نہ درود نبی اتے کلی زمین تے پھلدی ہے. لگن بھاگ مدینے نو میرے علی جدو ہوا مدینے دی چلدی ہے. اور جے میں ویکھاں بس 2-4 منٹ لگاؤں گا. جے میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھے، جے میں نہ ویکھاں او ویکھے. انہیں بھاگ کتھوں میرے چنگے، میرے ویکھ دیاں او ویکھے. سیوں نی رل منگو دعائیں جند لگ جائے یار دے لیکھے. یار فریدا چل در ملیے او ویکھے یا نہ ویکھے. اور بہو حسرت ہے تنڈے بوئے ہوتے متھا ٹیک دا مر جاواں. تنڈے عشق دا بال کے مچ سونا بس سیک دا مر جاواں. پینڈا دوریاں دا نال ہنجواں دے انج میچ دا مر جاواں. ہووے وقت اخیر مکھ ٹینڈا سونا ویکھدا مر جاواں. اور نہ گھر بنایوں بندی ہے، نہ دکھڑے سنایوں بندی ہے، نہ دولت کمایوں بندی ہے. رب دیا سونیا محبوبہ گل تیرے بنایوں بندی ہے. بے شک گل تیرے بنایوں بندی ہے. تو دوستان محترم، ایسی محفلوں کی برکت تو یہ ہے کہ اگر کوئی بھولے سے بھی اس محفل میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہ معاف کر دے. بالکل اسی طرح جس طرح ایک شخص 70 سال یا سنم کہتا رہا، ایک دفعہ بھولے سے اس کے منہ سے یا سمد نکل گیا، آواز آئی لب بیک یا عبدی بول میرے بندے کیا بات ہے. تو فرشتوں نے کہا یا رب العالمین اس نے تو بھولے سے آپ کا نام لے لیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے فرشتوں اگر میرا بندہ بھولے سے بھی مجھے پکارے تو میں اس کی پکار پر لب بیک کہتا ہوں. سبحان اللہ، کیونکہ وہ ہے رحیم کریم ایسا کوئی نہیں اس کے جیسا. جو اس کا انکار کرے وہ اس سے بھی پیار کرے. حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ کو ایک بار پکارو بدلے میں 10 بار پکارتا ہے. ایک بار یاد کرو بدلے میں 10 بار یاد کرتا ہے. ایک دفعہ ذکر کرو بدلے میں 10 بار ذکر کرتا ہے. ایک قدم چل کے جاؤ بدلے میں 10 قدم چل کے آتا ہے. وہ اتنا رحیم کریم اور اتنا قریب ہے جتنی دل سے دھڑکن قریب ہے، آنکھ سے نور قریب ہے، کان سے سماعت قریب ہے، زبان سے کلام قریب ہے اور بدن سے روح قریب ہے. ہم بھی اس سے دور ہیں دوستان محترم، ہم بھی اس سے دور ہیں. اور انہی دوریوں کو ختم کرنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہمیں نور کی روشنی ملی. دوستان محترم، کائنات میں جتنا بھی حسن بکھرا ہے سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا صدقہ ہے. پیار اور محبت حضور کے نور کا صدقہ، علم اور عمل حضور کے نور کا صدقہ، اخلاق اور کردار حضور کے نور کا صدقہ، معاملات اور عبادات حضور کے نور کا صدقہ، حسن و جمال حضور کے نور کا صدقہ. حضرین محترم، ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ اس نبی کی امت ہے جس نے پتھروں کو کلمہ پڑھا دیا، جس نے درختوں کو کلمہ پڑھا دیا، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دیا، چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیا، دشمنوں کو دوست بنا دیا، ذرے کو پہاڑ بنا دیا، قطرے کو سمندر بنا دیا اور پتے کو گلستان بنا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے محترم، یہ گلستان تب بھی بنا رہے گا جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ آپ کی بات کو بھی مانیں گے، آپ کی بات کے ساتھ آپ کی عادات کو بھی اپنائیں گے. کیونکہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے وہی رب کی عبادت ہے. ہم کہتے ہیں نا یا اللہ تجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں
तो रब फरमाता है मेरे महबूब से मोहब्बत करो, वही मोहब्बत मेरी मोहब्बत है। या अल्लाह तेरी अताअत करना चाहते हैं, रब फरमाता है मेरे महबूब की अताअत करो, वही अताअत मेरी अताअत है। या अल्लाह तेरे बताए हुए रास्ते पे चलना चाहते हैं, तो रब फरमाता है मेरे महबूब के बताए हुए रास्ते पे चलो, वही रास्ता मेरा रास्ता है। अब इबादत किसकी है दोस्तान मोहतरम? अल्लाह की। इबादत किसकी है? अल्लाह की। हम कहते हैं या अल्लाह तेरी इबादत करना चाहते हैं, तो रब फरमाता है जो मेरे महबूब की आदत है वही मेरी इबादत है। बेशक बेशक जो मेरे महबूब की आदत है वही मेरी इबादत। इबादत है। इसलिए इकबाल ने कहा था ना, मुझे क्या खबर थी रकू की, मुझे होश क्या थी सजूद की, तेरे नक्शे पाक की तलाश थी कि मैं झुक रहा था नमाज में, और जिस तरफ वो नजर नहीं आते हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं। काबा बनता है उस तरफ को रियाज रुख जिस तरफ वो मोड़ लेते हैं, और सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो, काबा तो देख चुके हो हाजियो, अब काबे का काबा देखो। मेरी जिंदगी भी अजीब है, मेरी बंदगी भी अजीब है, जहाँ मिल गया तेरा नक्शे पा मैंने वही काबा बना लिया, और अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज तेरे नज़ारे का एक बहाना बनी, अरे दीद सरापा न्याज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी, और ये ज़ाहरीन हरीम मगरब हज़ारों राहबरी हमारे, भला हमें इनसे क्या वास्ता जो तुझसे ना आशना रे। और अगर चाहते हो बिलाल जैसा आशिक बनना चाहते हैं, यानी दोस्तान मोहतरम बताएं ना जी, बिलाल जैसा आशिक बनना चाहते हैं या नहीं? इकबाल जैसा आशिक बनना चाहते हैं ना? तो अगर चाहते हो बिलाल जैसा आशिक बनना, अगर चाहते हो इकबाल जैसा आशिक बनना, तो दुनिया की मोहब्बत से किनारा कर लो, जैसे भी गुजरती है गुजारा कर लो। अल्लाह के जलवों की अगर है ख्वाहिश तो सरकार के जलवों का नज़ारा कर लो, मदीने के दरो दीवार की बात करो, अली के दर की घर मोहम्मद के घर की बात करो, नबी के नूर को देखेगा अबू जहल कैसे, किसी बिलाल के हुस्न नज़र की बात करो, किसी इकबाल के इश्क नज़र की बात करो। हम तो दोस्तान मोहतरम मुस्तफ़ा के तस्करे कभी कभार करते हैं, अल्लाह ताला कुरान पाक में बार बार करता है, कभी हुस्न जमाल के तस्करे, कभी इखलाक और किरदार के तस्करे, कभी मामलात और इबादत के तस्करे, कभी हुस्न जमाल के तस्करे, कभी इशारों के, कभी बालों के, कभी सियादत के, कभी क़यादत के, कभी जलवत के, कभी खलवत के, कभी दिन के, कभी रात के, कभी सुबह के, कभी शाम के, कभी नाम के, कभी काम के और कभी कलाम के। वो मन ज़करा का मन ज़करानी, महबूब जिसने तेरा जिक्र किया उसने मेरा जिक्र किया, जिसने तेरी नाते पढ़ी उसने मेरी नाते पढ़ी, जिसने तेरी तारीफ़ की उसने मेरी तारीफ़ की, जो तुझसे मिला वो मुझसे मिला, जिसने तुझसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जो तुझसे दूर हुआ वो मुझसे दूर हुआ, जो तेरा हो गया वो मेरा हो गया, जो तेरे बताए हुए रास्ते पे चला वो मंजिल पे पहुंच गया। आप यहाँ बैठ के एक तजर्बा करें दोस्तान मोहतरम, आप अल्लाह के हैं, आप अल्लाह के हैं, आपके होंठ जुदा हो जाएंगे, अल्लाह के हैं होंठ जुदा हो जाएंगे, मोहम्मद के हैं तो 2 बार मिलते हैं, मोहम्मद बेशक मोहम्मद के हैं तो 2 बार मिलते हैं, यानी खालिक और मखलूक के दरमियान एक रिश्ता है, उस रिश्ते का नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस रिश्ते का नाम है, एक यहूदी ने मुसलमान से कहा कि अपने नबी की एक बात बताओ। यहूदी ने किससे कहा? मुसलमान, अपने नबी की एक बात बताओ। तो उस यहूदी ने, उस मुसलमान ने यहूदी से कहा हमारे नबी का फरमान है कि पानी जब भी पियो पानी देख कर पिया करो, पानी जब भी पियो पानी देख कर। वो यहूदी घर चला गया, सो गया, रात को अंधेरे में उसको प्यास लगी, उठा, अपनी जोजा से कहा कि मुझे पानी दो, वो अंधेरे में उठी, बर्तन उठाया और पानी लेके आ गई। वो जब पानी पीने लगा यहूदी तो उसे ख्याल आया कि मुसलमान ने मुझे अपने नबी की एक बात बताई थी, देख के पिया करो, अपने नबी की एक बात बताई थी कि पानी जब भी ये पानी पिया करो, देख के पानी पिया करो। तो उस यहूदी ने सोचा मैं देखूं तो सही इस नबी की बात में हिकमत क्या है कि आज सारी दुनिया इसका कलमा पढ़ती है, इसके बताए हुए रास्ते पे चलती है, इसकी तारीफ़ और तौसीफ़ करती है, इसका जिक्र और अज़कार करती है। हज़रीन मोहतरम, उसने जब अंधेरा था लाइट जला कर देखा तो पानी के अंदर बिच्छू तैर रहा था, पानी के अंदर बिच्छू तैर रहा था। तो उस वक्त उस यहूदी ने एक तारीखी जुमला कहा, ये जुमला सुनने वाला है दोस्तान मोहतरम, हमारे लिए बहुत बड़ा पैगाम है। उस यहूदी ने कहा जिस नबी की एक बात पर अमल करने से, नबी की एक बात पर अमल करने से मुझे नई ज़िंदगी मिली, मैं अगर उस नबी की और बातों पर अमल करूं मैं तो कभी मर ही नहीं सकता। नबी की और बातों पर अमल करूं तो मैं तो कभी मर ही नहीं सकता। एक शख्स ने पूछा ना, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी, क़यामत कब आएगी? हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूने क़यामत के लिए क्या तैयारी की है, क़यामत के लिए क्या तैयारी? उसने कहा या रसूलल्लाह मेरे पास कोई अमल नहीं है। अब ये गौर करना दोस्तान मोहतरम, वो असहाबी रसूल थे, कौन थे?
साहबी रसूल थे। तो कहा या रसूल अल्लाह हमारे पास कोई अमल नहीं है, लेकिन या रसूल अल्लाह हम हर वक्त आपकी तारीफ़ और तौसीफ़ करते हैं, आपकी नातें पढ़ते हैं, आपके तराने गाते हैं, आपकी शान में कसीदे लिखते हैं, हर वक्त आपका जिक्र और अज़कार करते हैं। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स दुनिया में जिसकी तारीफ़ और तौसीफ़ करता है, जिसकी नातें पढ़ता है, जिसके तराने गाता है, जिसका जिक्र और अज़कार करता है, क़यामत के दिन वो उसी के साथ होगा। लिहाजा तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि क़यामत के दिन तुझे मेरी रफ़ाकत नसीब होगी। सुभान अल्लाह। बाबा फरीद ने कहा ना साको आसरे उन्हें मिठे मदनी दे साढ़े हाल ते करम हजार थी सन सदीक उमर नाले उस्मान अली साढ़े हामी चारे यार थी सन कोसी कार दी गर्मी डे अशर दे जदू जलवा गर सरकार थी सन जिदे सेरे शाकर गांदे आ ओदे लब हिल सन बेड़े पार थी सन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ओदे लब हिल सन बेड़े पार थी सन। दोस्तान मोहतरम, तो ये इकबाल से किसी ने पूछा ना, इलामा इकबाल से, कि आपको इतनी इज्जत शोहरत मर्तबा, और इकबाल को जानते हैं ना दोस्तान मोहतरम, इलामा इकबाल इकबाल है, मैं उसको वलीगार कहता हूँ। क्या कहता हूँ? वलीगार, वली बनाने वाला, समझे ना, वली बनाने वाला। तो उससे किसी ने पूछा आपको इतनी इज्जत शोहरत मर्तबा और मुकाम जो मिला है, आप क्या अमल करते हैं? अब गौर करें दोस्तान मोहतरम, अगर इकबाल ने PhD की है तो PhD इस वक्त दुनिया में करोड़ों लोगों ने और भी की हुई है ना, किया या नहीं बताएं ना? तो बात डिग्री की नहीं है, बात इसकी भी है। अगर PhD की डिग्री से उसको इतना मकाम मिलता तो डिग्री तो आज करोड़ों लोगों के पास उससे भी ज़्यादा डबल है या नहीं, बताएं ना। अब फिर आगे चलें, उसने कुरान पाक पढ़ा है, तो कुरान पाक क्या हम लोग नहीं पढ़ते हैं? सब लोग बताएं ना जी, हम भी पढ़ते हैं ना, ऐसे ही है ना, और लोग भी पढ़ते हैं ना, ठीक है ना। लेकिन उसने कुरान का जो हक था उसका पूरा हक अदा किया, जो पढ़ने का था हक उसका पूरा हक अदा किया। तो इकबाल से पूछा आपको इतनी इज्जत शोहरत मर्तबा और मुकाम जो मिला, आप क्या अमल करते हैं? तो इकबाल ने कहा मैं कसरत से दुरूद पाक पढ़ता हूँ और सारी कायनात से बढ़कर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और मोहब्बत करता हूँ। इसलिए इकबाल ने कहा ना, वो दानाए सुबल खत्म रसल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादी सीना, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा, और ज़िक्र फ़िक्र इल्म अरफान तो ही कश्ती दरियाओ तूफ़ान तो ही, रुख मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना न हमारी बज़्म ख़याल में, न दुकान आईना साज में, और की मोहम्मद से वफ़ातू ने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या है लोहो कलम तेरे हैं। तो बस दोस्तान मोहतरम, हमारी इज़्ज़तें हमारे वजूद से नहीं, हमारी इज़्ज़तें हमारे वजूद से नहीं, बल्कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ वाबस्ता है। दीन और दुनिया में अगर कोई चीज़ काम आएगी तो वो है निस्बत रसूल, वो है गुलामी रसूल। इसीलिए इकबाल ने कहा था ना, आबरूए माज़ नाम मुस्तफ़ा, हमारी इज़्ज़त ताज़ीम और तकरीम सिर्फ़ और सिर्फ हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ है, उसके बगैर हम कुछ नहीं हैं। जिसने इसको ज़ाती कमाल समझा वो गलती पर है। और इकबाल ने यहाँ क्या खूब कहा कि हमारी इज़्ज़तें हमारे वजूद से नहीं बल्कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ हैं। कि आबरूए माज़ नाम मुस्तफ़ा, कि हमारी इज़्ज़त ताज़ीम और तकरीम सिर्फ़ और सिर्फ हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ है। हर कुजा बीनी जहान रंग बू आँख के अस खाकश हारूद आरजू, याद नूर मुस्तफ़ा ओरा बहारस, यहूद अंदर तलाश मुस्तफ़ा बा मुस्तफ़ा बरा शाखे शरा के दी हमाऊस, अगर बू ना रसीदी तमाम बू लहाबी, और ना तू अंदर हरम गुंजी ना दर बुतखाना में आई, व लेकिन सूए मुश्ताका च मुश्ताका में आई, और तू फरमूदी राह बताहा गिरफ्तम वगर ना जुस तुम्हारा मंजिल नीस, और तू गनी अज हर दो आलम मन फ़कीर रोज़ माशर उज़र हाय मन पजीर, गर हसाबम रात बीनी ना गुज़ीर। और फिर इकबाल ने क्या खूब कहा कि उसने यूसुफ को देखकर कटी उंगलियां, उसने यूसुफ को देखकर कटी उंगलियां, चांद कट गया उंगलियां मुस्तफ़ा देखकर, और ईसा के मौजज़ात ने मुर्दे जगा दिए हैं, और मुस्तफ़ा के मौजज़ात ने कई ईसा बना दिए हैं, कई ईसा बना दिए। और यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम बोल उठे कि बेशक हुस्न ज़्यादा मेरा तो कुल जहाना नालूं, पर नहीं ज़्यादा कीमत मेरी आका तेरियां जुल्फ़ां। और इस शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा कि आंसुओं से गुसल करके लहू से वुज़ू करे, आंसुओं से गुसल करके लहू से वुज़ू करे, ऐसा जो कर सके वो तेरी जस्तजू करे, और बेकस मेरे इश्क़ जनून का हाल ना पूछ, दामन जो फाड़ दूं फरिश्ते आके रफू करें। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।